ahead. Okay, the recording has been started already. Okay, so everyone, once again, welcome to the operating system lecture series. In this particular session, in the last session, I think so, we have started with the virtual memory and the basic concept, the advantages of the virtual memory, using the virtual memory, why we are using the virtual memory, their advantages, and then afterward one more concept we have done, that is the demand paging. Based on the demand, based on the requirement, the pages will be called from virtual memory to the main memory. Okay, so it was all about we have done in the last meeting, in the last session. Okay, and we came to know that the virtual memory is a part of the disk. Okay, that is your hard disk. Virtual memory is the part of the hard disk we have taken just in order to compensate the what I showed you, shortages of the physical memory, that is the main memory के shortages को complete करने के लिए we have invented or we have gone through the we have gone through the concept of virtual memory. ठीक है, अगर virtual memory रहेगा so we'll be able to execute more and more processes. Okay, so that we have already seen. Okay, and in this particular diagram, you can see I was having total five sorry. So imagine um, so we have taken some of the virtual memory from the disk. Okay, and that particular virtual memory was divided into the number of partitions. Okay, and we have divided our process into number of pages. Okay, as we know that our process A was divided into four pages. Page A, that is A1, A2, A3 and A4. Okay, A1, A2, A3 and A4. So as per the requirement, that is A1 I placed in this particular location, A2 over here, A3 over here, and A4 over here. Okay, actually I'm not going to write anything today in the today's session. We can continue or we can complete the session just by going through my videos screenshot only. So if there is any requirement, then we'll be doing that also. Okay, because उसके अंदर लिखना बहुत पड़ेगा और यहाँ पर मैं सारा काम आपको खाली वीडियोस के स्क्रीनशॉट से दिखा सकता हूँ. So that is very simple. ओके, सो विल बी लर्निंग अबाउट द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. सो इसके लिए यहाँ पर अब मैं आज कुछ लिखूंगा नहीं. आई विल बी गोइंग थ्रू दीज स्क्रीनशॉट्स ओनली. ओके, so hope so what I've done, this particular process A was divided into four pages, that is A1, A2 and A3 and A4. Okay, so I placed all these four pages into the virtual memory. Okay, then your virtual memory is the part of the disk, that is your hard disk. Okay, your external storage. Okay, and as per the requirement I'll be calling and I'll be moving these particular and I'll be copying these pages into the frames. Okay, because this is my main memory. Okay, and this main memory is very I mean to say this main memory is very precious, very important for me, because I don't want to waste this particular memory in irrelevant pages. Okay, so I'll be copying and I'll be calling only those pages which are relevant and which are the which are needed for execution of that particular process. Okay, so currently I was at this particular situation I was requiring only A2 page, so the A2 was called. After that A3 was called. After that A4 was called. Okay, so as per the requirement the pages will be called and then they will be released and they will be moved back to the virtual memory. Okay, this particular process is called as swapping in, swapping out. From this particular diagram you can easily understand. See, the pages are swapped in and the pages are swapped out. Okay, so when you are having a requirement, you can see the things. When we were having a requirement, so we have called the page number 7 and 6 and 7 की जगह पे जो pages थे, जो कि process B के pages थे, so we have called them inside the main memory. So देखो arrow mark you can see. Okay, so we have swapped in those pages inside the main memory. Okay, and now these pages are not required. That is the pages of process A. So we have swapped out these pages into the virtual memory, which is the part of the disk space. Okay, so it was a very simple concept, that is demand paging. Okay, and demand paging can be implemented, virtual memory can be commonly implemented by the demand paging concept. Okay, so pages are loaded only when they are demanded. तो पेजेस को हम तभी लोड करेंगे जब उनका डिमांड रहेगा, जब उनका रिक्वायरमेंट रहेगा.
And without requirement, you are not going to call, you are not going to copy, you are not going to load those pages from virtual memory to the main memory, because main memory में लाके हमको गर्दी जमा नहीं करने के लिए, हमको कम से कम लोड रखना है हमारे मेन मेमोरी को, so that the remaining pages will be executed very efficiently. Okay. So it was the concept of demand paging that we have already done. Now we are going to move to the next concept, that is page replacement. So today I was planning to complete this particular topic, that is page replacement algorithm. Okay. So totally we'll be learning the three algorithms, that is FIFO. First was FIFO, first in first out. Second was second. Okay, यहीं से मैं बता देता हूँ. The first is FIFO, second is LRU, and the third is optimal algorithm. Okay, so FIFO is nothing but the first in first out. Okay, then second one is the LRU, that is least recently used, the pages which are not used from the longest period of time, so we are going to remove it. We are going to move them back to the virtual memory, and we are going to free the main memory, that is done in the LRU. Okay, and after that we have optimal is the best one. Optimal, the name is the name itself optimal नाम इसीलिए है. Okay. Okay, चलो let's start with the basic concept of page replacement. यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेज रिप्लेसमेंट अल्गोरिथम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर. ओके, इन दिस पर्टिकुलर पेज रिप्लेसमेंट टॉपिक यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट. लेट मी सी एवरीथिंग इज करेक्ट और नॉट. ओके, एम आई क्लियर ना? माय ऑडियो इज क्लियर ना? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? प्लीज लेट मी नो. Yes, sir. Okay, thank you so much. Because actually I'm not using my mobile phone, so I cannot see that you people are typing, you people are doing some messages. आप कुछ लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो मैं देख नहीं सकता हूँ. इसके लिए मुझे वापस स्क्रीन चेंज करके आना पड़ता है. Okay, so coming back to the page replacement topic, and I'll be going quite fast. थोड़ा सा मैं हम लोग fast जाएंगे, because these concepts are very very simple. Okay, and we'll be learning this concept in a very simple way. So with the use of demand paging, more number of programs can be executed. As we know that with the help of demand paging, only the required pages will be called into the main memory from the virtual memory. So with the help of this concept, more and more programs, that is more and more processes can be executed. Okay, so it was the concept we have already seen. Now comes with the page fault. This is the one new term we are going to learn in this particular topic, that is page fault. Page fault, it is said to occur when requested page is not in the main memory. Page fault क्या होता है? बेसिकली आपने किसी पेज को मतलब कि कॉल किया. It is said to occur when requested page is not in the main memory. वो जो पेज है वो आपका मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, and it need to be brought from the secondary memory. So it is called as page fault. Okay, मतलब ऐसा पेज जो कि मतलब कि जिसका नाम जो बोलते हैं ना कि अदालत में जिसका नाम लिया गया उसको वहाँ पे हाजिर होना है. ठीक है, बट अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर कहाँ से लाना पड़ेगा? कहीं ना कहीं बाहर वो खड़ा रहेगा. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल एग्जांपल. आई नो दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी मतलब बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया हूँ मैंने आपको, बट स्टिल यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट सेंस ऑल्सो. So if there is any page which is not in the main memory, if there's any page which is not in the main memory, it is in the secondary memory, that is in the virtual memory. Okay, it is said to occur when requested page is not in the main memory and it is need to be brought from the secondary. Okay, so अब क्या करना है हम लोग को, जैसे मैंने आप लोग को चलिए यहाँ से मैं बताता हूँ. यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता हूँ एक्चुअली, ये डायग्राम से आप लोग को मैं बताता हूँ. ठीक है, सो आई हैव कॉल्ड, see, A2, A3, A2, A3 and A4 are already here. Okay, in the main memory. So when the system will be calling A2 page, so yes, I am present. When the system will be calling A3, yes, I am present. When the system will be calling A4, yes sir, I am present. But when the system will call the page A1, so is it present in the main memory? No, it is not present in the main memory. So this is, so इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे पेज फॉल्ट. ओके, इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पेज फॉल्ट. ओके, अब पेज फॉल्ट यहाँ पर हुआ तो ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को? अरे बोलो क्या करना पड़ेगा? System is calling for page A1. Okay, then what we need to do? We need to call this page A1. We need to copy this page A1 from virtual memory to the main memory. Okay, so we'll be copying, we'll be calling, we'll be loading the page A1 from virtual memory to the main memory.
So when I'll copy the page A1, when I'll copy the page A1 to the main memory, तो यहाँ पर जब आ जाएगा तब जाकर हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, यानी कि आपका सिस्टम बनेगा ओके नाउ यू आर प्रेजेंट। ठीक है, तो आगे आगे देखते हैं। अच्छा, जब वो आएगा व्हेन विल बी लोडिंग दिस पेज A1, तो यहाँ तो चलो जगह है, 1 2 3 जगह है, अगर यहाँ पे जगह नहीं हुई तो क्या करेंगे आपको बताओ मुझे, एनीवन कैन प्लीज। सपोज यहाँ पर आपका कोई दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, B1 B2 ऑलरेडी, आवाज नहीं आ रही प्रॉपरली। ओके चलो मैं बताता हूँ। आई एम ऑलरेडी हैविंग A2 A3 एंड A4 ओवर हियर, एंड यहाँ पर सपोज करो B1 B2 B3 ऑलरेडी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस B के भी कुछ 2-4 पेजेस है। ठीक है, तो मेन मेमोरी में कोई जगह नहीं है भी, और आपको A1 को कॉल करना है। ठीक है, जब आप A1 को कॉल करना है और आपके पास में जगह नहीं है, जो कि यहाँ पर पेज फॉल्ट अकर हो चुका है, तो आप क्या करोगे, सिंपली यू विल बी रिप्लेसिंग एनी पेज। ठीक है, क्या करना पड़ेगा हम लोग को, किसी एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि A2 A3 A4 में से किसी एक पेज को भेजना पड़ेगा वापस से, कहाँ पर, वर्चुअल मेमोरी में। मतलब क्या करना पड़ेगा, स्वैप्ड, अरे बोलो क्या करना पड़ेगा, कोई बोलता ही नहीं यार, क्या करना पड़ेगा, स्वैप आउट करना पड़ेगा, और फिर A1 को क्या करना पड़ेगा, स्वैप इन करना पड़ेगा। ठीक है, यू नो दीज आर द टर्म यू विल लर्न फ्रॉम दीज कॉन्सेप्ट। ओके, तो क्या बोल रहे थे हम लोग, हाँ यार हम लोग पीछे अच्छा। So when I'll be loading this page A1 inside the main memory, then A2 A3 A4 में से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा, किसी एक को हम लोग को वापस से वर्चुअल मेमोरी में भेजना पड़ेगा, तभी जाकर तो एक जगह खाली होंगी। अरे भाई कोई जब तक उठेगा नहीं, ओके सो जब तक कोई यहाँ से उठेगा नहीं, जब तक कोई यहाँ से जाएगा नहीं, देन A1 के लिए जगह बनेगी नहीं। ओके, सो इन ऑर्डर टू प्लेस A1 आई नीड टू रिप्लेस एनी ऑफ द पेज, दैट इज A2 A3 A4 में से किसी को हटाना पड़ेगा, तभी जाकर आपका A1 आएगा। डू पीपल्स अंडरस्टैंडिंग और नॉट व्हाट आई वांट टू से, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं आप लोग को? ओके, तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक खाली एग्जांपल बताया मैंने कि व्हेन आई विल बी लोडिंग द पेज A1 इनसाइड द मेन मेमोरी, देन यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो जगह आपको नजर आ रही है, लेकिन सपोज करो ये जगह भी फुल है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, बिकॉज आई डू नॉट थिंक के उसमें सब लोग को समझे है। सो सपोज यहाँ पर ऑलरेडी है, मतलब ऑलरेडी कुछ तो यहाँ पर आपके प्रोसेस B के पेजेस है। ठीक है, और यहाँ पर कोई जगह नहीं, एंड आई वांट टू लोड पेज A1। ओके, सो इन दैट केस व्हाट आई हैव टू डू, I need to swap out any of the page, that is A2 A3 A4 या जब कोई भी जो भी पेज है उसको मुझे वापस से वर्चुअल मेमोरी में भेजना पड़ेगा। ओके, और फिर मुझे A1 को इन करना पड़ेगा, A1 को अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया? ओके, अब आते हैं हम लोग एक्चुअल टॉपिक पे। It is said to occur when requested page is not in the main memory and it needs to be brought from the secondary memory. Now you understand what is page fault. Okay. Now what about the existing page? अब existing page को जो already बेचारा है main memory में, जैसे बात करें तो हम लोग A2 A3 A4 की, उसमें से existing page को मतलब आपको हटाना पड़ेगा। It needs to be discarded. Okay, मतलब आपको उसको हटाना पड़ेगा, कहीं और भेजना पड़ेगा, तभी जाकर आपका नया पेज आप उसको main memory में ला सकते हैं। Okay, are you getting or not? Okay. So we have number of pages in the main memory, which one to discard? Again, I'll go back to this particular diagram. Okay, in case I want to load this page A1, then कौन से पेज को मैं यहाँ से निकालूँ? A2 को, A3 को, A4 को, B1 को, B2 को, B3 को, कौन से पेज को निकालूँ? कौन मुझे बताएगा कि कौन से पेज को आपको निकालना है और A1 को लोड करना है? वो कौन बताएगा बोलो? अरे बताओ, आप में से कोई बता सकता है? सिस्टम को कौन बताएगा कि A1 पेज को लोड करने के लिए कौन से पेज को बाहर निकालना पड़ेगा? Because they are in the main memory, they have occupied the places in the main memory ना. Until and unless I'll be moving these pages, one of the page from the main memory to the virtual memory, I cannot load this page A1. Okay,
So in order to load this page A1, I need to replace, I need to move, I need to discard one of the page from the main memory to the virtual memory. And who is going to decide and who is going to tell me that which page is to be discarded? कौन बताएगा मुझे? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर अस. ओके, ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि कौन सा पेज यहाँ से हटाना है, तब जाकर आपका पेज है. देखो मैं ये चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज आप यू कैन अंडरस्टैंड बाय thinking that why you need to understand this concept, because the next concept is completely based on this idea only. Okay, कौन मुझे बताएगा कि इस इन सारे पेजेस में से किस पेज को डिस्कार्ड करना है, सो दैट द न्यू पेज कैन बी लोडेड इनसाइड द मेन मेमोरी. ओके, सो चलो वापस आते हैं. द सिलेक्शन ऑफ पेज टू बी डिस्कार्डेड इज परफॉर्म बाय पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. दिस इज द वाइवा क्वेश्चन फॉर यू पीपल. सो ऑलवेज रिमेंबर, कौन सा ये कौन आपको कौन बताने वाला है कि इन सारे पेजेस में से, I was talking about these pages ना, A2, A3, A4, B1, B2, B3. ओके, इन 6 पेजेस में से किस पेज को मुझे निकालना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा, सो दैट आई कैन लोड पेज A1 इनसाइड मेन मेमोरी. ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, द सिलेक्शन ऑफ पेज टू बी डिस्कार्डेड इज परफॉर्म बाय पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. And these page replacement algorithms are nothing but the FIFO. Okay, FIFO मतलब first in first out. So according to the first in first out, what it says, भाई जो सबसे पहले आया है उसको डिस्कार्ड करो. हो गया सोल्यूशन हमारे पास में. According to the second algorithm, that is LRU, that is least recently used, ऐसे पेज को डिस्कार्ड करो जो बहुत देर से यूज नहीं हुआ है. Getting the point? तो हो गया हमारा सेकंड सोल्यूशन, सेकंड एल्गोरिथम बोलता. एंड द थर्ड वन, दैट इज ऑप्टिमल. ओके, तो ऑप्टिमल का आपको मैं टाइम पे बताऊंगा. दैट इज वेरी सिंपल. ओके, सो वी हैव टू मिनिमाइज फ्रॉम दिस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, वी हैव टू मिनिमाइज द पेज फॉल्ट रेट. ओके, सो वी हैव टू मिनिमाइज इट. ओके, तो पेज फॉल्ट रेट हमको कम करना है, इसके लिए वी आर यूजिंग द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. ओके, एंड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स आर गोइंग टू टेल मी दैट which page is to be discarded, which page is to be discarded from the main memory and move back into the virtual memory, so that the pages can be loaded from virtual memory to the main memory. Okay, I hope you are getting these points. Now you have got the idea that why page replacement algorithm is needed. I hope that we have understood why page replacement algorithm is needed. Is it so? Please let me know. नहीं लगता समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को. ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Okay, so it was all about the page replacement concept. Why need the page replacement algorithm? So these different page replacement algorithms are FIFO, LRU, optimal. These are the 3 different page replacement algorithms. Again, I'm telling you, this is the 10 marks question in examination, and I will show you the different question based on this particular one. Okay, some data will be given to you, and you will be you will be asked to solve these. You will be asked to find out the page fault. You will be asked to find the page fault rate for the given string of data. Okay, so the data will be given something like that. Okay, you will be given some reference string will be given, and the page frame will be given to you. Okay, and you need to find the page fault rate, page fault rate. So page fault divided by number of pages in the string, so we can easily find out the page fault rate. Okay, तो यहाँ पर हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग यहाँ थोड़ा सा बेसिक और पढ़ के जाते हैं. So operating system decide which memory page to swap out. Okay, so that is going to tell by that is going to decide by the page replacement algorithm. Okay, we have few more terms like reference string, we have page fault, and we have page frame. Okay,
So these are the three different terms we need to understand while solving these problem like page replacement algorithm. Okay, so the first is reference string. इनको थोड़ा खाली बस बेसिक समझते चलो, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे देन आप लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट. ओके, अगर किसी को नहीं समझे तो मुझे प्लीज बताओ. ओके, ओके, द फर्स्ट वन इज द रेफरेंस स्ट्रिंग. ओके, अच्छा आपको मैं सिंपली बता दूं रेफरेंस स्ट्रिंग क्या है. इन एग्जांपल में जब आपको ऐसा आएगा कि सब आपको कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, 701203, कुछ डेसिमल नंबर्स आपको दिए रहेंगे, कुछ इंटीजर नंबर आपको दिए रहेंगे. ठीक है, सो दीज नंबर्स जो लाइन से नंबर होंगे 10 12 15 ये नंबर्स होंगे. सो दिस स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज द रेफरेंस स्ट्रिंग. ओके, अब डायग्राम में देखा आप लोगों ने, अब यहाँ पढ़ते क्या है. सो स्ट्रिंग ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस इज कॉल्ड एज रेफरेंस स्ट्रिंग. ओके, तो जो हमारे मेमोरी रेफरेंसेस है उनकी जो क्यू है, उनकी जो नंबर्स है, that string will be called as the reference string. Okay, they are generated artificially or by tracing a given system and recording the address of each memory reference. मतलब ये आपको जनरेट करना नहीं पड़ेंगे, ये एक्चुअली जनरेट होती भी है आर्टिफिशियली, बट ये जो ऑलरेडी प्रोसेस के जो पेजेस ऑलरेडी आपके मेमोरी में चल रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो उनका उनका रिकॉर्डेड डेटा है एक्चुअली. ओके, so reference string is the simple one. In the simple word I can say this is the reference string for you. These are the memory location which we have recorded while all the processes were running at the time, and मतलब सारे process जब execute हो रहे थे तो उस टाइम पे उनके memory locations को हम लोगों ने record किया है. So this is nothing but the reference string. Okay, so ये आपके reference string है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की भी ज़रूरत नहीं है. तो reference string will be given in the question itself. Okay, the second one is page fault. Okay, as I have already told you about page fault that it is said to occur when requested page is not in the main memory. जो आपके सिस्टम ने पेज कॉल किया है और अगर वो क्लास में नहीं है, मेन मेमोरी में नहीं है, तो क्या होता है फिर आप लोग क्लास में बैठे क्लास में अटेंडेंस आने वाली रहती है या फिर लेक्चर स्टार्ट होने वाला रहता है, तो आप लोग क्या करते हैं, क्लास में बैठे अपने फ्रेंड्स को एक व्हाट्सएप मैसेज डाल देते हैं, क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट. ओके, सो जब हम लोग कॉल करते हैं अभी ये बंदा नहीं आया, तो कुछ देर के बाद में वो आ जाता है. ठीक है, या फिर उसको हम लोग बुलाते हैं तो आ जाते हैं. तो इफ देयर इज समथिंग लाइक के कोई पेज है जो कि ऑलरेडी मेन मेमोरी में नहीं है, तो और उसको हम लोग को सेकेंडरी मेमोरी से बुलाना पड़ेगा. ठीक है, so this is called as the page fault. Okay, coming to the actual definition, what it is saying, it is said to occur when requested page is not in the main memory. As simple as that. So we have very simple definition for page fault is that page fault is said to occur when requested page is not in the main memory. जो पेज को बुलाया गया है वो पेज अगर मेन मेमोरी में नहीं है तो मतलब पेज फॉल्ट है. ओके, उसके बाद में है पेज फ्रेम. द थर्ड कॉन्सेप्ट इज पेज फ्रेम. It indicates that number of pages will be there at the time in the main memory. Okay, so page frame एक टाइम पे कितने पेजेस आपके रह सकते हैं एक टाइम पे. फॉर एग्जांपल आई से कि एट अ टाइम व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ योर क्लास. ओके, मतलब आप जब क्लास में बैठोगे, आपकी फिजिकल क्लासेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल क्लासेस, तो एक टाइम पे कितनी कैपेसिटी है, तो यू विल टेल मी कि हाँ सर 80 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है. ओके, सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ योर क्लास. बट व्हेन आई से कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ पेजेस हु कैन एग्जीक्यूट एट अ टाइम. ठीक है, कितने पेजेस आपके एट अ टाइम क्या कर सकते हैं, रन हो सकते हैं, एग्जीक्यूट हो सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड द पेज फ्रेम. सो एट अ टाइम अगर हम लोग उसको वैरी कर सकते हैं, पेज फ्रेम इक्वल्स टू 3, इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू 5 एंड सो ऑन. ओके, सो दिस इज द पेज फ्रेम. ये सारा जो मैंने आपको बताया हूँ ये आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएंगे इजीली, तो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. द फर्स्ट वन, page replacement algorithm, that is the first algorithm, first in first out. You all are aware about it, first in first out. You know, this is the situation where the entity or the items comes first, then it goes first. Okay, तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा और वो जो पहले पाएगा वो पहले जाएगा. ठीक है, so this is the concept or the tagline we can say for FIFO, first in first out. We can simply explain with the help of this diagram. This is the tail, this is the front. The items will be added or in from this particular side. जब यहाँ से आया तो यहाँ पर प्लेस हुआ, फिर सेकंड वाला आया, फिर यहाँ पर प्लेस,
थर्ड वाला यहाँ पर 4 5 6 7 and so on. Okay, and they will be coming out from this way. So those items which are coming inside the queue will goes out first. Okay, so FIFO first in first out. All the pages in the memory in queue with most recent arrival at the back. Okay, तो भाई जब अगर कभी जरूरत पड़ी किसी पेज को रिप्लेस करने की, तो कौन सा पेज रिप्लेस करोगे अकॉर्डिंग टू द फीफो? द वन विच हैज अराइव फर्स्ट. ओके, आप वो पेज को रिप्लेस करेंगे जो कि सबसे पहले आया है. ओके, when page is to be replaced, the page at the front of the queue is selected for the replacement purpose. Okay, you know, this is the tagline for FIFO: replace the page that has been in the memory for the longest time. ठीक है, आपको याद रखना है ये tagline whenever we are going to replace any page. Okay, whenever we are going to replace any page, so at that time कौन सा पेज को रिप्लेस करेंगे? उस पेज को जो कि बहुत देर से, जो कि सबसे पहला आया हमारे पास. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं. आई थिंक ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है. अब हम लोग एक्चुअल एग्जांपल की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, so this particular reference string will be given to you in example in the question. This reference string will be given to you. जो नीचे जो ये है ना, यहाँ मत देखो अभी फिलहाल. ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट आल्सो. So we'll be having this reference string with us, that is 70120304230321201701. This is the reference string for given. Okay, and we will be also given with the page frame. Okay, the page frame is 3. That it means that how many frames will be there? We will be having 3 frames. Okay, so as you know, we have got 3 frames. ओके, हम लोग अब क्या कर लेंगे, हम लोग अभी फ्रेम्स बना लेंगे, बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी एंट्री. तो ये 3 फ्रेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा मिला के आपने सारे स्ट्रिंग के लिए, सारे नंबर्स के लिए आपने 3 फ्रेम बना लिए. ठीक है, इतना करने के बाद में यू विल बी कॉलिंग द फर्स्ट वन. ठीक है, 7 को आपने इंसर्ट किया, 7 आ गया, 7 को आपने कॉल किया. तो अभी कोई है आपके फ्रेम में, कोई है फ्रेम में, कोई भी नहीं. तो 7 को कॉल किए तो 7 आके फर्स्ट प्लेस पे आ गया. ठीक है, 0 को कॉल किए तो 0 भी आ गया. ठीक है, दीज आर कॉल मिसेस. इन्हें जब हम लोग ने कॉल किया तो ये नहीं थे, इनको बुलाया गया, इनको हम लोगों ने वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में लोड कर रहे हैं. ठीक है, सो वी हैव लोडेड द 7 फ्रॉम वर्चुअल मेमोरी टू द मेन मेमोरी. तो जब लोड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो जब वो नहीं था तो इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं मिसेस. ठीक है, मतलब बोलते हैं ना पेज हिट, पेज मिस. तो यहाँ पर अगेन 2 टर्म्स आपको देखने मिलेंगे. वन इज पेज मिस एंड वन सेकंड इज पेज हिट. ओके, तो सिस्टम ने कॉल किया 7 नंबर हाजिर हो, तो 7 नंबर नहीं था. So we have called the page number 7, okay, which was not in the main memory. तो ये क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेज हिट बोलेंगे या पेज मिस बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पेज मिस. यहाँ पर मतलब नहीं था, मिस हुआ, बाद में हम लोगों ने कॉल करके बुलाए और फिर यहाँ पर वो आया. ठीक है, तो 7 was placed at the first location. तो इसको हम लोग जो भी x यानी कि क्रॉस सिंबल से शो करेंगे, दैट इज द पेज मिस. ओके, और अगर हिट होगा तो उसको हम लोग h से डिनोट करेंगे. ठीक है, या फिर हिट लिखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 स्ट्रिंग में से 7 आया, तो 7 को हम लोग ने प्लेस किया. फिर 0 आया, 0 को प्लेस किया. फिर 1 आया, 1 को प्लेस किया. तो फॉर ईच एंड एवरी एंट्री विल बी शोविंग सेपरेट फ्रेम. ओके, तो 7 प्लेस सक्सेसफुली, 0 प्लेस सक्सेसफुली, 1 प्लेस सक्सेसफुली. यहाँ तक सबको क्लियर है? पहले मुझे बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, सो करना कुछ नहीं हम लोग को, बहुत सिंपल है. बस खाली रेफरेंस स्ट्रिंग में से एक एक नंबर उठा के हम लोग को फ्रेम में डालना है. एंड हाउ वी केम टू नो दैट के द फ्रेम की साइज कितनी है? पेज फ्रेम की साइज 3 है. ठीक है, सो वी हैव मेड 3. मैं आपको आगे एग्जांपल ऐसे बताऊं जिसके अंदर हमारे पेज फ्रेम की साइज 4 है. सी दिस, ये जो पेज फ्रेम है यहाँ पर साइज हमारी 4 है. ठीक है, सो इन द फर्स्ट वन 7 प्लेस, सेकंड 0 प्लेस, थर्ड में 1 को प्लेस किया. यहाँ पर तीनों जगह पेज मिस आया. पेज मिस क्यों आया? बिकॉज वो पेजेस वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे. ओके, जब पेजेस वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे तो क्या करना पड़ा हम लोग को? उन पेजेस को वर्चुअल मेमोरी में से लोड करना पड़ा.
इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है एक्स एक्स एक्स, मतलब पेज यहाँ पर मिस हुआ है। ओके, चलो अब आगे आते हैं फोर्थ वन पे। तो फोर्थ नंबर हमारा क्या है, दैट इज 2। फोर्थ मेमोरी लोकेशन क्या है, 2। अब हमको टू को लाना है वर्चुअल मेमोरी में से मेन मेमोरी में, ठीक है। लेकिन लाएंगे कहाँ पर, जगह जगह तो फुल है। अरे बोलो, जगह तो फुल है कि नहीं जगह यहाँ पर। जब जगह फुल है तो उसको कहाँ पर लाएंगे हम लोग, उसको हम लोग 2 की जगह पर लाएंगे, सॉरी 7 की जगह पर लाएंगे, या 0 की जगह पर लाएंगे, या 1 की जगह पर लाएंगे। एट विच पेज दिस पर्टिकुलर 2 विल बी 2 पेज विल कम। ओके, ये जो आपका 2 है, ये 2 ये कौन सी लोकेशन पर आएगा, 7, 0 और 1। अरे बताओ तो, आप लोग का भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। 7। 7 पे। ओके, सो चलो ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। देखो 7 क्यों, क्योंकि 7 सबसे पहले आया है, एंड अकॉर्डिंग टू द फीफो दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूर आपका 7 सबसे पहले आया है, ठीक है। तो 7 को हम लोग कंसिडर करेंगे, 7 को उठा के वापस से वर्चुअल मेमोरी में भेज देंगे और 2 को इन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा मिस हुआ है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी था नहीं, आपका 2 पेज था नहीं, लेकिन उसको आपको लाना पड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे पेज मिस। तो हम लोगों ने इसको डिनोट किया है एक्स से। तो दिस इज द मिस, दिस इज द मिस, दिस इज द मिस, एंड दिस इज ऑल्सो अ मिस। ओके, सो नाउ योर पेजेस इन द फ्रेम इज 201, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट फ्रॉम द स्ट्रिंग वी हैव नेक्स्ट पेज इज 0। ओके, अब 0 को आपको लोड करना है, क्या करेंगे बोलो, 0 को कहाँ लोड करेंगे। 0 पहले से है तो उसको 0 नहीं पहले कुछ से है, करेंगे वहाँ। ओके ओके। सो जब 0 पहले से है यहाँ पर, तो हमें इस पेज को वर्चुअल मेमोरी में से लोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो वी डू नॉट नीड टू लोड 0 पेज फ्रॉम वर्चुअल मेमोरी टू द मेन मेमोरी बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर इन द मेन मेमोरी। ओके, सो दिस सिचुएशन विल बी कॉल्ड एज द पेज हिट। ओके, सो यहाँ पर हम लोग h से डिनोट करेंगे। इन द नेक्स्ट एग्जांपल आई विल बी शोइंग लाइक h लाइक ऐसा मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के। तो यहाँ पर हिट आया, यहाँ पर ऑलरेडी मिस था, यहाँ पर हिट आया, ठीक है। तो the string will be as it is 201 as it, okay. Now we have next that is page 3 so page 3 will be loading page 3 inside this one। तो page 3 को हम लोग लोड करना पड़ेगा, बोलो 201 में से कौन सबसे पहले आया है, 201। 2 तो चलो अभी अभी आया, हाँ 2 तो चलो अभी अभी आया, उसके पहले आया है 1 और उसके पहले आया था 0, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो एट द प्लेस ऑफ 0 योर पेज 3 विल बी प्लेस्ड। सो now the page frame condition is 231, okay. This is again a page miss, so we have denoted with the help of x, okay. Now the next memory location, the next is 0। नेक्स्ट इज 0। अब 0 को कहाँ लोड करना है, यहाँ बोलो ओल्डेस्ट वन कौन सा है, 3 तो भाई अभी आया है, उसके पहले वाला 2 है और उसके पहले वाला आपका 1 है, ठीक है। 1 की जगह पर लोड करेंगे, तो 0 को लोड किया हम लोगों ने। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू लोड द पेजेस, in the same way we are going to load the pages which has entered the page frame initially, okay। जो सबसे पहले आया है among the present, ठीक है। जो प्रेजेंट है उनमें से जो सबसे पहले आया है वो जगह पर आपका न्यूली अराइव पेज आप प्लेस होगा, ठीक है। तो चलो आगे और देख लेते हैं। आपका पेज 4 आया, पेज 4 यहाँ पे जाएगा बिकॉज देखो 2 और 2 आपका पहले से ओल्डेस्ट वन है, तो यहाँ पर प्लेस हुआ, 4 3 0 देती है। फिर 2 आया तो 2 नहीं, तो 2 में से 2 कहाँ पर आएगा, एट द प्लेस ऑफ 3, क्योंकि 3 देखो आपका काफी ओल्डेस्ट वन है, जो सबसे पहले वाला आया है, तो 2 विल बी प्लेस्ड ओवर हियर। तो 4 2 और 0 एज इट इज। देन उसके बाद में आपका आया पेज 3, तो पेज 3 विल बी प्लेस्ड एट विच लोकेशन, 0, बिकॉज 0 आपका 0 पहले आया, मतलब 4 0 में से सबसे पहले आया, ठीक है। तो 0 के लोकेशन पे आपका आ गया पेज 3। 4 2 3 इज द सिचुएशन, अगेन 0 विल कम नाउ, 0 तो है नहीं यहाँ पर अभी, तो 0 विल बी प्लेस्ड एट दिस लोकेशन दैट इज फर्स्ट लोकेशन, 4 की जगह पर आएगा, तो 0 यहाँ पर आ गया, 0 2 3 लाइक दैट, ओके। और उसके बाद में फिर अब आते हैं हाँ उसके बाद में हमारा आया पेज 3 अगेन, पेज 3 इज ऑलरेडी देयर
पेज 3 इज ऑलरेडी देयर, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे पेज हिट है। फिर उसके बाद में आपका पेज 2 आया, तो पेज 2 इज ऑलरेडी देयर, अगेन पेज हिट, तो दो टाइम पे यहाँ पर आपका पेज हिट हो गया है। फिर उसके बाद में आपका पेज 1 आया, पेज 1 को कहाँ पर करेंगे, विच इज द ओल्डेस्ट वन, 2. आपका ये जो 2 वाला है ये आपका ओल्डेस्ट वन है, तो 2 की जगह पर आपका 1 आ जाएगा, 0 विल बी एज इट इज एंड 3 will be as it is, okay. Then आपका पेज 2 आएगा, पेज 2 will be placed at which location, जो कि सबसे ओल्डेस्ट वन है, 3 तो ये आपका ओल्डेस्ट लोकेशन है, मतलब सबसे पहले आया है 3, तो 2 will be placed at यहाँ लोकेशन, so 0 1 2 is the situation. Now 0 will come, तो 0 is already there, तो पेज hit, 1 will come, 1 is already there, तो पेज hit, 7 will come, तो 7 नहीं है ऑलरेडी हमारे पास, तो इट विल बी प्लेस एट द 0th लोकेशन, बिकॉज 0 0 0 ये सबसे पहले आया हुआ है, तो 7 विल बी प्लेस एट दिस लोकेशन, 7 1 2, ओके। 7 के बाद में फिर आया 0, तो 0 को कहाँ प्लेस करेंगे, 1 1 1, दिस इज द ओल्डेस्ट वन, तो आपके 0 को यहाँ प्लेस किया, 7 0 2 हो गया। उसके बाद में आपका पेज 1 आया, पेज 1 को कहाँ प्लेस करेंगे, एट प्लेस ऑफ 2, ओके। तो 7 0 1 हो गया, ओके। ये भी आपका पेज मिस, ये पेज मिस, ये पेज मिस, यहाँ पर 2 हिट, एक सेकेंड, okay. So I hope you have understood this particular arrangement, how we have loaded the pages, these reference string inside the page frame, जिसकी size थी page frame equals to 3, okay. So how we have loaded these pages inside this page frame, okay. और कहाँ कहाँ पर हमको पेज मिस मिला और कहाँ कहाँ पर पेज हिट मिला, ठीक है। तो अगर कैलकुलेट करेंगे आप, अगर आप यहाँ पर फॉल्ट रेट अगर कैलकुलेट करेंगे, पेज फॉल्ट रेट अगर कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल सी द फॉर्मूला इज अ पेज फॉल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेजेस इन द स्ट्रिंग, ठीक है। सो हाउ मेनी पेजेस आर वर देयर इन द स्ट्रिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मिला के हो गया आपके 20 पेजेस थे, ठीक है। तो लिखा मैंने 20। पेज फॉल्ट कहाँ कहाँ पर अकर हुआ है, पेज फॉल्ट कहाँ कहाँ पर अकर हुआ है, तो आई थिंक 15 जगह पर आपका पेज फॉल्ट अकर हुआ है। पेज फॉल्ट उसको बोलते हैं, पेज फॉल्ट इज सेट टू अकर, पेज फॉल्ट इज सेट टू अकर when requested page is not in the main memory, when the requested page was not in the main memory। तो यहाँ पर आपका नहीं था, यहाँ पर मतलब जो हमारे पेज मिस है वही हमारा पेज फॉल्ट है, ठीक। तो पेज फॉल्ट हम पेज मिसेस को ही बोलेंगे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर आपका पेज फॉल्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सो 15 प्लेसेस पर 15 जगह पर ऐसा हुआ कि आपके पेजेस मेन मेमोरी में नहीं थे, आपको वर्चुअल मेमोरी से बुलाना पड़े, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द पेज फॉल्ट, ओके। समझ में आ रहा है आप लोग को, पेज फॉल्ट इज इक्वल टू 15, ओके। So 15 divided by 20 becomes 0.75. This is, it becomes your fault rate. It becomes your page fault rate. Okay. अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके एवरीवन, मतलब फ्लो के अंदर मुझे पता नहीं चला, इट इज 2:50 नाउ, ओके। So what we have done today, we have revised the concept of demand paging, and then afterward page replacement concept. We come to know what is page fault, and if there is a page fault, then what to do. We need to bring the new page, we need to bring the requested page from the virtual memory and load into the main memory, and load अगर करना है, एंड अगर लोड करना है तो लोड कौन से पेज से हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। सो दैट इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। सो वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर इशू विद द हेल्प ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, दैट इज FIFO, LRU and optimal, okay।
and the purpose of these page replacement algorithm is to minimize the page fault rate. Okay, so we came to know about the reference string, page fault, and page frame, and we took one example also, that is example number 1. Okay, and we come to know what is the page fault rate, that is 0.75. Okay, if you take the page frame equals to 4, then the result will be different, the page fault will be different. Okay, the value will be different. Okay, so we'll be stopping over here. Okay, and we'll be taking one more example of before, and then we'll take and we'll move to the next one. That is, we have one concept, that is LRD's anomaly. What is LRD's anomaly, we'll see, and then after that we'll be covering the next one, that is LRU, then afterward optimal. Okay, so till then, thank you so much, bye bye. Let me stop the recording and give you the attention.